we have seen that an array variable can store a list of values. List of values store करते हैं, like marks of 100 student. Okay. Marks of 100 student. Many applications require us to store a table of values. Like suppose हमें क्या किया था, पहले हमने कोई एक सब्जेक्ट का आपका एक स्टूडेंट लिया था और एक ही सब्जेक्ट का मार्क इंटर करवाया था. बट सपोज देयर आर 5 सब्जेक्ट इन योर एग्जाम और इन योर मार्कशीट, लाइक सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4. तो स्टूडेंट 1 have 5 subject 1, like in first subject he get 75, 82, 90, 65, 76, and student 2 get following marks. Okay, and student 3. So such type of table value will be handled using 2-dimensional array. Okay, so you can say, I can say that tabular form of data can be handled using 2-dimensional array. So today's topic is 2-dimensional array. So this is called first row. This is row 1, or you can say this is row. Okay, this is first row, second row, third row, fourth row, and this is called column. First column, second column, third column, fourth column, or you can say fifth column. Okay, so when we handle 1-dimensional array, there is only such type of data. Let us suppose there are 100 students and marks of all students are stored like this, like first student like 75, 85, 82, 92, 45, 50, so on. Okay, so they all are handled using like A0. This is called if this array is int A100. Okay, so elements are accessed using, first element can be accessed using A0, second one इसको हम हैंडल करते थे A1 से, this one A2, A3, A4, और लास्ट वाला हम कैसे करते थे let us suppose there are 100 element in this array, so last index is 99. So last element can be accessed using A99. So index कहाँ से start हुआ था, 0, 1, 2, और लास्ट वाले का इंडेक्स था 99. ठीक है, तो ऐसे ही मान लो 2-dimensional array है ये वाला. तो इसमें क्या होगा, ये रो, ये फर्स्ट रो है, ये इसको आप 0th रो भी बोल सकते हो, रो 0 या रो 1, रो 2, रो 3. मीन्स इसका इंडेक्स आप बोलोगे 0, 1, 2, 3. ओके, और इसका इंडेक्स अगर हम रो वाइज चलेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे भी इंडेक्स का वही कॉन्सेप्ट है, 0 से स्टार्ट होगा, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो. ठीक है, तो इस टेबल में आप देखो, देयर आर टोटल 20 वैल्यूज. द टेबल कंटेन्स द टोटल ऑफ 20 वैल्यूज, 5 इन ईच लाइन, और यू कैन से इन ईच रो. The table can be regarded as matrix. इसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. What is the order of the matrix? Order of this matrix is there are 4 into 5 na? 4 into 5. Yes. 4 rows and 5 column. So order of this matrix is 4 into 5. Four into 5. Order of this matrix is 4 into 5.
The table can be regarded as matrix consisting of 4 rows and 5 columns. Okay. In this table, there are 4 rows, 4 rows and 5 columns. C allows us to define such table of item by using 2-dimensional arrays. So such type of data can be handled using 2-dimensional array. So what is the syntax of declaration of 2-dimensional array? So syntax of declaring 2D array is first type, array name, row size and column size. Suppose I want to store this above column. In that case, I have to declare array like this. Int, suppose this is return type. Next one is array name. Okay, so this is array name. First, you have to define row size. So here, total 4 rows in this table, and how many columns? 5. Okay. So 20 space क्या होगा, इससे 20 स्पेस रिजर्व हो जाएगा. किस टाइप का होगा? सारे स्पेस इंटीजर टाइप के. और जैसे आपने लिखा फ्लोट सेल्स 12 25, ये कैसा टेबल बनेगा? इसमें कितने रोज होंगे? 12 रोज और 25 कॉलम. डबल मैट्रिक्स, इसमें कितने कॉलम रो होंगे? 100 रो होंगे और 100 कॉलम होंगे. बट इंडेक्स का होगा, लास्ट वाले का इंडेक्स क्या होगा? इस वाले में 3 4, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होगा रो का 0 to 3 तक और कॉलम में 0 to 4, क्योंकि मैंने यहाँ बोला ना. तो मान लो आपने स्टोर किया, मार्क्स 4 5 डिक्लेयर किया आपने. ये टेबल कैसा बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ. तो इसी में दिखाता हूँ. 4 5 आपने डिक्लेयर किया, तो ये इंडेक्स हो गया 0. पहले रो में देखते हैं, क्योंकि हमने पहले जो डिक्लेयर किया क्या किया है? रो किया है. यहाँ देखो, पहले क्या है? रो साइज. ठीक है, रो स्टार्ट होगा 0 1 2 3, कॉलम 0 1 2 3 4. सो अगर हमें क्या करना है, ये वाला एलिमेंट हमें एक्सेस करना है. सो दिस एलिमेंट इज एट इंडेक्स, रो इंडेक्स 0 एंड कॉलम इंडेक्स इज 1. सो दिस एलिमेंट कैन बी एक्सेस लाइक marks. This element can be accessed using marks, row number 0, column number 1. Okay? और अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? क्या बोलेंगे इसको हम? marks row number 1. रो का इंडेक्स क्या है? 1. कॉलम इंडेक्स 2 0 1 2. लास्ट वाले का ये 70 को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मार्क्स, कोई बताएगा? मार्क्स 3 और कॉलम साइज, कॉलम नंबर 3 4. ठीक है, हमने डिक्लेयर किया था लास्ट जो हमने एरे डिक्लेयर किया था वो क्या डिक्लेयर किया था? मार्क्स 4 5, ये डिक्लेयर किया था ना, मार्क्स 4 5. तो लास्ट वाले का इंडेक्स देखो एक एक कम है. जैसे उसमें था जब हम 1-डायमेंशनल एरे करते थे, उसमें भी लास्ट वाले का जैसे A99 था और शुरू में A0, और हमने डिक्लेयर किया था A100. एक कम ही हो रहेगा. ठीक है, तो ऐसे ही 4 अगर हमने डिक्लेयर किया था 4 3 4 5, तो लास्ट जो एलिमेंट होगा क्या होगा? मार्क्स 3 4. Accessing elements of a 2D array similar to that of 1D array but use 2 indices. उसमें हम एक ही इंडिसेस यूज करते हैं, इसमें 2 यूज करेंगे, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए. फर्स्ट इंडिसेस रो, सेकेंड इंडिसेस कॉलम. बोथ द इंडिसेस should be expression which evaluate to integer value. जैसे हमने लिखा x mn is equal to 0, तो ये m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. जैसे हमने डिक्लेयर किया था जब मान लो x 4 5 डिक्लेयर किया है, int x 4 5, तो m और n की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m? अगर हमने डिक्लेयर किया है int x 4 5, ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m इन दैट केस?
तो मुझे बताएगा क्या क्या हो सकता है, m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 0 to 3 कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे ही n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 to 4। ये एड्रेस है, जैसे उसमें एड्रेस कैलकुलेट करते थे। हाउ इज 2D array is stored in memory? पहले तो हम बात करें हाउ 1D array is stored in memory। कितने लोगों को पता है 1D array कैसे स्टोर होती है मेमोरी में? 1D array, in case of 1D array, how element are stored in memory? Anyone? कोई बताओ कैसे स्टोर होता है 1D array? सर कंटिन्यूसली स्टोर करता है ये। हाँ कंटिन्यू, जैसे मैंने डिक्लेयर किया सपोज int a5, ओके, int a5 एलिमेंट कैसे स्टोर होते हैं? int a5, 5 एलिमेंट हमारे यहाँ रिजर्व हो जाते हैं इंटीजर टाइप, 2 3 4, ठीक है, मान लो ये int a5 है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। Let us suppose address of first element you can say a0। अगर इसका एड्रेस है आपका 1000, so what is the address of a1? Address of a1 will be क्या होगा बताओ? 1004 से। हाँ 1004, नेक्स्ट 1008, 1012, 1012, 1016। तो आपने देखा कि जो एड्रेसेस हैं वो कैसे स्टोर हो रहे हैं? कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पे, एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि रैंडम ऑर्डर में नहीं स्टोर हो रहे हैं। अगर A0 1000 पे है तो नेक्स्ट वाला उसके जस्ट है ना कंटिन्यूस मेमोरी पे है, या एडजेसेंट कह सकते हो, ठीक है, 1000 तो इस तरह से। अब 2D की अगर बात करें तो इसमें तो हम कह रहे हैं कि 2D में बन रहा है कुछ इस टाइप का टेबल। जैसे सपोज हमने डिक्लेयर किया A23, मान लो मैंने डिक्लेयर किया A23, A123 किया तो जो इसमें कितने कॉलम और कितने रो होंगे? 2 कॉलम 3 रो, राइट? टू कॉलम, टू रो और 3 कॉलम, सॉरी 2 रो 3 कॉलम, इस तरह कुछ होगा मैट्रिक्स। टोटल 6 प्लेसेस रिजर्व हो जाएंगे। इसका इंडेक्स होगा 0, इसका होगा 1, क्योंकि ये क्या है रो नंबर बताता है 0 1। और इस वाले में क्या होगा 0 1 2। ये आपका क्या है A00, मैं राइट? A00, ये क्या होगा A01, इसमें जगह ही नहीं है, दोबारा टेबल बनाता है। ठीक है, ये 0 1 0 1 2, so this element is called A0 0 A01 A02 A10 A11 A12, कुछ इस तरह से स्टोर होगा, ठीक है। अब इन सब एलिमेंट का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, ओके। तो ये हम ये बात कर रहे हैं कि मेमोरी में स्टोर कैसे होगा। एक्चुअली आपको फील हो रहा है कि ये टेबल में स्टोर हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से, बट ऐसे नहीं स्टोर होता है। होता क्या है A00 A01
A02 इसके बाद जस्ट यहाँ पे स्टोर होता है, इसकी जस्ट एडजेसेंट, इसके बाद A10 स्टोर होता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये यहाँ आ गया, ऐसा नहीं है, ये जस्ट यहाँ पे होगा, बट हम विजुलाइज ऐसे करते हैं मैट्रिक्स को। बट नेक्स्ट एलिमेंट A10 क्या होगा, A10 इज एडजेसेंट टू A02, ऐसे कह सकते हो, ये पूरा का पूरा यहाँ उठ के यहाँ ऐड हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये समझ लो कि A00, A01 किस ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर होंगे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे, फर्स्ट A00, देन A01, A02, एंड देन हियर यू कैन से A10, A11, A12। ठीक है, बट हम सोचते हैं कुछ इस तरह से टेबल बन रहा है, इसलिए हम इस तरह से टेबल बनाते हैं, बस स्टोर सब कंटिन्यूअस में ही होगा। मान लो यहाँ एक और रो होता, ठीक है, इसके नीचे, तो ये भी इसके जस्ट एडजेसेंट बनता। तो लेट अस सपोज इसका एड्रेस है x, तो इसका एड्रेस क्या होगा, अगर इंटीजर है, लेट अस सपोज दिस इज इंटीजर int a, तो ये क्या होगा, x+4। यस सर। इसका क्या होगा, x+8। इसका क्या होगा, मैंने बोला ये, इसको आप एज्यूम करो कि इसके जस्ट बगल में है यहाँ x+12, x+12, x+16, x+20। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन मेमोरी लोकेशन द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड रो वाइज इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। ठीक है, रो वाइज स्टोर होता है, पहले ये फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फोर्थ रो, जितने भी रो होंगे आपके टेबल में। ठीक है, x, लेट अस सपोज x स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे इन मेमोरी, मान लो मैंने x इसको ले लिया, c नंबर ऑफ कॉलम, अब इसमें कॉलम कितने हैं, मैंने 2 लिया है, वेरिएबल नहीं लिया है, k नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेटेड पर एरे एलिमेंट, अब ये 2 होगा इन केस ऑफ इन k की वैल्यू होगी 4 इन केस ऑफ इंटीजर, k इक्वल टू 1 इन केस ऑफ करेक्टर, एंड k इक्वल टू 4 इन केस ऑफ फ्लोट, एंड k इक्वल टू 6 इन केस ऑफ डबल। तो ये k की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो अगर आप वेरिएबल के देखोगे तो जो aij का एड्रेस होगा वो होगा x+ci, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे मैंने अगर A00 मैंने लिखा इस वाले टेबल में, A00 का अगर एड्रेस है x, ओके, x स्टार्टिंग एड्रेस, तो अगर इस फॉर्मूले से हम देखें तो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ A12, A12 इस फॉर्मूले में रखें अगर हम, तो क्या होगा, x+i, i क्या है हमारा, ये 1 है, यहाँ पे 1 इंटू c, हम लोग क्या ले रहे हैं, फ्लोट ले रहे हैं, डबल ले रहे हैं या इंट ले रहे हैं, तो c की वैल्यू क्या है, नहीं नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी, तो हमारे टेबल में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम 3। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है ना, देखो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यस सर। तो हम लोग इसमें रखेंगे
ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने ये x प्लस 20, ये देखो हमने कैलकुलेट किया तो x प्लस 20 ही आ गया, ठीक है, x प्लस 20, और यहाँ पे हमने वैसे ही लिख दिया था बिना फॉर्मूले के, तो भी x प्लस 20 ही आया था। देखो यहाँ पे x प्लस 4, x प्लस 8, x प्लस 12, x प्लस 16, x प्लस 20। तो ये देखो ऐसे ही छोड़ता है, पहले रो 0 फिर रो 1 फिर रो, अगर हम पहले रो को बोलते हैं रो 0 तो ये रो 1 भी हो सकता है अगर आप ऐसे बोलते हो, बट इंडेक्स वाइज हम बोल रहे हैं रो 0 रो 1 रो 2। अब 2D एलिमेंट हम लोग रीड कैसे करते हैं, तो हमें ये टेबल रीड करना है 1 3 5 4 6 8 9 10 0, ये मैट्रिक्स है, हमें स्टोर करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये कौन सा एरे है, डायमेंशन क्या है इसका 3 into 3, ठीक है, 3 into 3 एरे है। ये कौन सा रो है, रो नंबर 0 आप कह सकते हो, रो नंबर 1 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 0 है ना, इंडेक्स वाइज अगर हम देखें तो ये क्या है, कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। ऐसे रियल लाइफ में तो ये कॉलम 1 ही है, कॉलम 1 कॉलम 2, बट हमें सी की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको, कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2। तो इसको स्टोर करना है हमें, तो हम लोग कैसे करेंगे, ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो एक लूप चलाओगे फॉर नंबर ऑफ रोज, सेकेंड चलाओगे नंबर ऑफ कॉलम के लिए, कॉलम में क्या स्टोर करना है। जैसे आप पैटर्न प्रिंट कराते थे तो एक क्या करते थे, पहला जो फॉर लूप ऊपर लगाते थे वो किस लिए लगाते थे, नंबर ऑफ रोज के लिए। अब उस रोज में क्या प्रिंट करना है वो एक दूसरे फॉर लूप से डिसाइड करते थे। तो ऐसे ये भी है, तो सपोज ये हमें स्टोर करना है 1 3 5 4 6 8 9 10 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, यहाँ पे सपोज हमने डिक्लेयर किया इंट मैट्रिक्स, कुछ ले लिया मैंने इंट मैट्रिक्स, इसका डायमेंशन क्या देना पड़ेगा 3 into 3, फर्स्ट नंबर ऑफ रोज, नेक्स्ट नंबर ऑफ कॉलम, दे दिया, डिक्लेयर, ये हो गया डिक्लेरेशन, ठीक है। अब हमें इसको यूजर से इनपुट लेना है, तो हम लोग एक लगाएंगे, ये देखो हमें स्टोर करना है 1 3 5 4 6 8 9 10 0। तो इसके लिए हमने ऑर्डर क्या कर लिया, 3 into 3 का एक मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ मैट्रिक्स लिखा तो कुछ नहीं, मैट्रिक्स यहाँ ए कुछ भी लिख सकते हो, ये मत सोचना कि मैट्रिक्स ही लिखना है, आप कुछ भी वेरिएबल एरे का नेम कुछ भी दे सकते हो, बट ये मैट्रिक्स जैसा था तो मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसको स्टोर करना है, तो पहले हम जो फॉर लूप लगाएंगे, फर्स्ट फॉर लूप इज यूज्ड फॉर number of rows, so how many rows I have to print, for I equal to 0 I less than, ये देखो इंडेक्स कहां तक चलेगा रो का, 0 to 2 तक चलेगा ना, जो इंडेक्स होगा मैट्रिक्स का उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 to 2 ही तो होगा। यस सर, यस सर, पहले 0 इंडेक्स पे, नेक्स्ट 1 इंडेक्स, नेक्स्ट सेकंड, तो ये लूप ऐसे चलाएंगे कि ये 0 to 2 तक चलेगा, 0 I less or equal to 2 और I प्लस प्लस, ये हो गया और रोज। अब रो में हमें क्या प्रिंट लेना है, स्टोर करना है, यहाँ पे दूसरा एक फॉर लूप होगा, इसके अंदर एक फॉर लूप फॉर इसमें आप देख लो कि कितने कॉलम हैं इसमें, डिसाइड कर लो आप इस टेबल में, देखो कितने कॉलम, सब इसमें फिक्स है,
कि हमेशा 3 कॉलम है ना, इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, आई पे तो डिपेंड नहीं है ना, इसमें कॉलम हमेशा 3 ही है, सब में फिक्स कर दिया हमने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लूप चलाएंगे फॉर j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0, j लेस आर इक्वल टू क्या लगा दें हम 3, सॉरी 2, ये भी तो 2 तक ही चलेगा कॉलम नंबर, ये फिक्स है, इसमें तो डिपेंडेंसी है नहीं आई पे। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे j इक्वल टू 0, j लेस आर इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। अब हम लोग को क्या स्टोर करना है, यूजर से हम वैल्यू इंटर करा लेंगे। printf इंटर वैल्यू, और सही से भी पूछ सकते हैं, आई जे की वैल्यू देके इंटर वैल्यू और इंडेक्स, अच्छा ये फॉर कैसा लगेगा, इंटर, अच्छा नहीं देगा, ये डबल कोट्स कर देंगे तो नहीं, इंटर वैल्यू फॉर इंडेक्स, इंडेक्स लिखते हैं हम लोग परसेंट डी इंटू परसेंट डी लिख देते हैं। यहाँ कॉमा लगा के हम लोग क्या लिख दें, बताओ, आई जे, क्योंकि पहले होगा आई 0, जे की वैल्यू 0 होगी तो पहले लिखेगा 0 0, नेक्स्ट टाइम में लिखेगा 0 1, फिर नेक्स्ट लिखेगा 0 2। एक मिनट में कुछ बच्चे मिल रहे हैं, अब तो 2 मिनट में बताऊंगा।
एक्चुअली आपके क्लास के कुछ बच्चे दूसरे क्लास के आए थे, उसमें क्या मतलब आईडी फेक आईडी बना बना के ज्वाइन कर रहे हैं कुछ बच्चे, ठीक है, तो ये ध्यान देना है, किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे इंटर, अभी हैं सब लोग क्लास में ना, गए नहीं ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, इंटर वैल्यू ऑफ फॉर इंडेक्स दिस, और यहाँ पे लिखेंगे आई कॉमा जे। हम लोग इसको कर लेंगे स्कैन। स्कैन कैसे करेंगे, स्कैन है, हम लोग लिखेंगे %d %d कॉमा %, क्या लिखेंगे हम लोग, कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं हम लोग ये वैल्यू, मैट्रिक्स आईजे पे स्टोर कर रहे हैं ना, मैट्रिक्स आईजे। ठीक, ये हो जाएगा स्टोर। अब हमें इसको डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए भी सेम फॉर लूप लगेगा, जिसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सेम टू सेम, ठीक है, Ctrl+C, मैंने पेस्ट कर दिया। बस स्कैनफ नहीं रहेगा यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे सीधा लिख देंगे प्रिंटफ। अभी ये लाइन में कर देता हूँ डिसेबल। प्रिंटफ %d, और यहाँ % नहीं लगेगा आईजे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ लिख दो प्रिंटफ वेब मैट्रिक्स, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग मैट्रिक्स डिस्प्ले करने जा रहे हैं, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे यू हैव एंटर्ड इसमें पहले ये क्या होगा, इसमें एलिमेंट स्टोर होगा, पहला एलिमेंट कहाँ स्टोर होगा, लूप तो सबको पता ही है ना, ये लूप कैसे वर्क कर रहा है, फर्स्ट वाला, और i = 0, i = 2, i <2, i++। सो फर्स्ट क्या होगा, i = 0 होगा इनिशियलाइज, लूप के अंदर आओगे अंदर, तो पहले होगा i = 0 के साथ एंटर करोगे, फिर j स्टार्ट होगा 0 to 2, तो फर्स्ट इंडेक्स कहाँ स्टोर होगा, 0 0 पे, फिर कहाँ स्टोर होगा 0 1 0 2, यहाँ तक स्टोर होगा, फिर आप यहाँ जाओगे, i की वैल्यू जाएगी 1 1 के साथ एंटर करोगे, तो फर्स्ट वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, 1 0 1 1, ठीक है, और 1 2, फिर आप यहाँ आओगे, i हो जाएगी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 के साथ जब आओगे तो पहले j स्टार्ट होगा 0 से, तो पहली वैल्यू स्टोर होगी 2 0, नेक्स्ट 2 1, उसके बाद 2 2, ठीक है, तो हम लोग कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पे एरर है, क्या एरर है, ये आई कह रहे हैं डिफाइन नहीं है, तो हम लोग यहाँ आई को भी डिक्लेयर कर देते हैं, इसी के बाद कॉमा लगा के आई डिक्लेयर कर सकते हैं, आई। सर प्रिंटफ के बाद सेमीकोलन भी रह रहा है। कहाँ पे, अच्छा अभी सर ऊपर भी रह गया अभी, लाइन नंबर, हाँ कॉपी पेस्ट किया था तो हर जगह ही होगा। जे भी डिफाइन नहीं है, तो यहाँ जे
कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो पहले जो एलिमेंट स्टोर होगा वो 0 0 पे, 0 1 पे, 0 2 पे, फिर 1 0 1 1 1 2, फिर 2 आई 2 के साथ अंदर आओगे 2 0 2 1 2 2, इस तरह से। इंटर वैल्यू फॉर इंडेक्स 0 0, तो हमने इंटर कर दिया 1, नेक्स्ट पे इंटर कर दिया 2, इंडेक्स 0 1, इस पे सपोज आपने इंटर कर दिया 3, इंडेक्स 1 0, इंडेक्स 1 0 4 कर दिया स्टेटस सपोज 4, नेक्स्ट पे कर दिया आपने 5, नेक्स्ट पे स्टोर कर दिया 6 7 8 लेगा ये 9, लिख के आ रहा है यू हैव इंटर्ड फॉलोइंग मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे डिस्प्ले करवाना है, जैसे ये टेबल है ना, ऐसे 1 2 3 इस टाइप से। पहले जो रो में स्टोर किया था ये ऐसे स्टोर हो, जैसे 1 2 3 यहाँ जाए, 4 5 6 यहाँ जाए, 7 8 9 इधर आ जाए ऐसे। तो हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं जैसे ही फर्स्ट रो प्रिंट हो, ठीक है, हम लोग कहाँ पे चले जाएं, न्यू लाइन पे। जैसे हम लोग पैटर्न करते थे, समझ रहे हो आप, ये पैटर्न प्रिंट करते थे कोई, जैसे स्टार आपने प्रिंट किया था तो एक स्लैश एन लगाना पड़ता था यहाँ, प्रिंटफ स्लैश एन, ये लगा दिया हमने सेमीकोलन, तो यहाँ डी के बाद थोड़ा स्पेस कर देते हैं, देखते हैं कैसे प्रिंट हो रहा है। तो मैट्रिक्स का थोड़ा साइज कम कर देते हैं यार, आने दो एक मिनट। आपने लिखा इंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स दिस, थोड़ा सा स्पेस यहाँ कर देते हैं जिससे ये खुद ही स्पेस आए, हमें ना करना पड़े। कंपाइल, तो हमने इंटर कर दिया सपोज 1 2 3 4 5 6 7, चलिए थोड़ा सा इंटर बटन हो गया था तो इसको दोबारा से रन करते हैं। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9, you have entered following matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आ रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है ये मैट्रिक्स, ठीक है। बट होगा क्या मेमोरी में स्टोर ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से एक ही रो में सारे स्टोर होते हैं, ठीक है, एक ही कॉन्जिक्यूटिव मैनर में। अभी मैंने बताया था ना कि एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये 3 के जस्ट एडजेसेंट है 4, ठीक है, और 6 7 क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे। अगर 6 का एड्रेस x है तो 7 का एड्रेस क्या होगा, x प्लस 4। 3 का एड्रेस अगर y है तो 4 का एड्रेस क्या होगा, इफ एड्रेस ऑफ 3 इज y देन व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 4, y plus 4। y प्लस 4, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लग रहा है कि ऐसे स्टोर होता है, ऐसे स्टोर नहीं होता है। ये 1 2 3 है, फिर यहाँ पे 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 स्टोर होता है। तो ये तो हो गया 2 डायमेंशनल एरे, हमने क्या किया, डिस्प्ले भी कर दिया और स्टोर भी कर लिया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अब सपोज हमें मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का सम करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, कोई बताएगा मुझे? मैट्रिक्स एलिमेंट का मुझे सम करना है, सारे एलिमेंट जितने भी हैं। बताओ जल्दी बताओ, बहुत इजी है, यही सेम 2 लूप लगेगा। तुम लोग बोल नहीं रहे हो, कैसे होगा बताओ?
मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का सम करना है, कैसे होगा? बताओ कामरान, कैसे होगा? एलिमेंट के सारे सम करना है मुझे, जितने सम है, जितने एलिमेंट है मैट्रिक्स के। जैसे मान लो मेरा ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये वाला है, ये है 1 3 5 4 6 8 9 10 0। तो हमें क्या करना है? 1 + 3 + 5 + 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 0 करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? कोई बताएगा मुझे, क्या मुश्किल है इसमें? तो अबूजर, आप बताएं। अमान खान, यस सर। आप बताइए कैसे होगा? सम, सारे एलिमेंट का सम करना है सर मैट्रिक्स। सम आई जे से हो जाएगा। हाँ, सर सम आई जे ले लेंगे, उसमें आई प्लस जे करते रहेंगे फॉर लूप चला के। अच्छा, सम एक वेरिएबल ले लेंगे, है ना? ये कह रहे हो? जी और उसको जी इनिशियलाइज कर देंगे 0। जी। और उसमें जैसे सम आई जे हो गया, फिर उसको इक्वल करके सर मतलब फॉर लूप में लगा लेंगे। हाँ हाँ हाँ, सम सम इज इक्वल टू सम प्लस सम ए आई जे करते रहेंगे, है ना? जी हाँ ठीक है। तो इसमें एक हम लोग यही कॉपी कर लेते हैं, सेम टू सेम। जब भी मैं 2 डायमेंशनल करना होगा तो ये हम यही कर लेते हैं, ऊपर वाला यहाँ पे। चलो ये कॉपी कर लिया सपोज, है ना? ये इतना कंट्रोल सी यहाँ पे लिख लिया, मेसन जो भी है यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और इक्वल टू 0। सम कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ ये न्यू लाइन की कोई जरूरत है नहीं सम में। इंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स यहाँ भी नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ हमें लिखना है सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आई जे, मैट्रिक्स ए आई जे, यहाँ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आई जे। आप प्रिंट कर दोगे, प्रिंट सम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू परसेंटेज कॉमा सम, और एक वेरिएबल ऊपर अब डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें, सम। यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं सम इज इक्वल टू, अपनी स्लाइड पे कर देते हैं, कंपाइल रन। मान लो 1 किया, 5 4 गलत आएगा आउटपुट। 1 5 3 8 0 2 मैट्रिक्स तो नहीं डिस्प्ले हुआ। सम ऑफ ऑल एलिमेंट 28 तो ठीक है, मगर मैट्रिक्स तो नहीं डिस्प्ले हुआ, क्या गलती होगी? अच्छा, कोड ही हटा दिया हमने, कट कर दिया था क्या? यस सर।
अच्छा, हमने डिस्प्ले ऐप करा लेना, ठीक है। यहाँ पे ये कोड भी कर देता हूँ पेस्ट, चलो। अब मान लो हमें फाइंड करना है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, सुना है कभी? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता है अगर आप ये, चलो आप ये ट्रेस नहीं जान रहे हो तो आप फाइंड करो, फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट। जैसे आपको सिर्फ सम करना है 1 + 3 + 1, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? मान लो हमें करना है 1 + 3 + 1, सम करना है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। तो कैसे कर सकते हैं? ये भी सिंपल है, सोच के बताओ जल्दी, फिर मैं आगे बताऊंगा, फिर बताऊंगा नहीं आगे। बताओ कैसे होगा सम? मान लो मेरा ये मैट्रिक्स है 1 3 9 8 4 6 1 0 9 3 1 5 7। क्योंकि मैट्रिक्स का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, या मैंने 3 लिया है, कुछ और भी हो सकता है, 4 × 3 का भी हो सकता है, 5 3 6 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, मुझे फाइंड करना है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। ये वाला 1 + 1 + 5 + 2 कैसे होगा? इसका हमें सम करना है। ठीक है, समझ गए क्या करना है? क्वेश्चन तो समझ गया ना हमें करना क्या है? यस सर। ठीक है, तो आप ये इंडेक्स का ध्यान रखो, ये इंडेक्स होता है 0, ये होता है इंडेक्स 1, ये होता है इंडेक्स 2, ये होता है इंडेक्स 3। ये इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो जो डायगोनल एलिमेंट है उनको ध्यान से अगर देखो, ये क्या है? पहला वाला कौन सा एलिमेंट है? 0 0 इंडेक्स पे, ठीक है। फर्स्ट वाले का इंडेक्स देखो तो क्या है? 0 0। नेक्स्ट वाले का इंडेक्स क्या है? 1 1, ठीक है। और सेकेंड वाले का इंडेक्स क्या है? 2 2, और इसका है 3 3। तो सर ये रोज इनटू रोज हो जाएगा? तो इससे क्या आपको समझ में आया? सर सम इक्वल रोज इनटू रोज हो जाएगा। कैसे? मतलब जैसे सर सम है उसको इक्वल ले लेंगे हम, सम प्लस मैट्रिक्स रोज इनटू रोज। रोज मतलब जैसे ये आई जो लिया था ना ऐसे। और कोई बताओ, और किसी को समझ में आ रहा है क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्चुअली इसमें हम इफ कंडीशन लगा दें, जब i = j हो तभी सम करें, नहीं तो ना करें। जैसे अभी हमने क्या किया था, ये जो प्रोग्राम लिखा हमने, इसमें हमने क्या किया, तो इसमें अगर हमें कंडीशन लगा दें इफ i = j तभी ये करना है सम = सम प्लस। समझ रहे हो अमान? यस सर। क्योंकि जो हम जैसे फर्स्ट रो है ये 0 वाला है, तो 0 0 वाला सिर्फ सम करना है हमें, बाकी तो करना ही नहीं है। ये 3 9 8 को तो इग्नोर करना है। जी ऐसे जी। इस वाले में हमें क्या करना है? सिर्फ ये वाला 1 1 वाला करना है। नेक्स्ट में 2 2 3 3। तो यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल हैं, वही डायगोनल एलिमेंट होते हैं। यस सर। सर मैं कह रहा था कि जैसे हमने एक फॉर लूप चलाया रो इक्वल 0 से, है ना?
और रो को सर आई से लेस कर दिया और रो प्लस प्लस कर दिया, मतलब कोई भी एक नंबर ले लिया रो के लिए, मतलब रो के लिए कोई भी वेरिएबल ले लिया, फिर हम अगर उसी फॉर लूप में सर सम इक्वल सम प्लस ए रोज रोज कर दें तो उससे भी हो जाएगा, ये रोज इनटू रोज, क्योंकि सर रो रो है ना यहाँ पे। चलो ठीक है, आप लैब में मुझे दिखा देना नेक्स्ट में, मैं जो कर रहा हूँ वो देख लो अभी। ठीक है, तो यहाँ मैं कंडीशन लगा दूं, इफ आई इक्वल टू जे, तभी आपको सम करना है, अदरवाइज नहीं करना है। यहाँ लिखो इफ आई इक्वल टू जे, जब आई और जे इक्वल हो तभी आप सम इज इक्वल टू सम प्लस करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, तो पहला एलिमेंट 0 0 हो जाए, सम हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, प्लस 1 1 होगा, फिर प्लस 2 2 होगा, प्लस 3 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट सम को हम ट्रेस भी बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। हमने लिख दिया। अब क्लोज कर देते हैं। मतलब रेडी कर दिया, 4 6 8 4 0 4 2 4। देखो सही आ रहा है डायगोनल एलिमेंट का सम। देखो ये मैट्रिक्स हमारा, यू हैव एंटर्ड फॉलोइंग मैट्रिक्स 1 4 6 8 4 0 4 2 4। तो हमें सम क्या करना है, 1 + 4 + 4। तो यहाँ मिल गया सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 9। ठीक है, अब तुम लोग थोड़ा सा ये बताओगे, मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं मान लो, उनका सम करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? मान लो कुछ ऐसा है, मैट्रिक्स सबने पढ़ रखी होगी, लगभग 50% लोगों ने तो पढ़ी होगा, है ना, सुना होगा मैट्रिक्स का नाम। नहीं सुना? सपोज हमें दो मैट्रिक्स का सम करना है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए प्लस बी करना है, तो एडिशन तभी पॉसिबल होगा मैट्रिक्स का जब व्हेन डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। फॉर एग्जांपल, अगर इसका डायमेंशन है 2 × 3, तो इसका भी डायमेंशन होना चाहिए 2 × 3। ठीक है, तभी इनका सम पॉसिबल है। तो अगर ए मैट्रिक्स है 2 × 3 और बी मैट्रिक्स है 2 × 2, तो पॉसिबल है। मगर अगर हम ये सम करें 3 × 2 और 2 × 3, तो इनका समेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स के सम अगर करना है हमें, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे ए है मान लो एक मैट्रिक्स 1 2 2 3, बी एक मैट्रिक्स है 0 3 1 9, और ये बी मैट्रिक्स है, इनका हमें सम करना है। तो ये पॉसिबल है मैट्रिक्स का सम, बिकॉज डायमेंशन ऑफ ए इज 2 × 2 एंड डायमेंशन ऑफ बी इज 2 × 2, तो एडिशन पॉसिबल। तो इसमें ऐड कैसे करते हैं हम, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम क्या करते हैं 1 + 0, तो जो समेशन आएगा वो होगा 0 फर्स्ट में, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे, 2 + 3 5 2, ये जैसे ये वाला पोजीशन कौन सा है 1 0 पे है, तो ये 1 0 वाले से सम होगा 2 + 1 3। क्या हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 9 12। तो मैट्रिक्स का ऐसे सम होता है, ये समझ गए, मैट्रिक्स का सम ऐसे ही फाइंड होता है। जैसे ये a 0 0 है और ये b 0 0 है, तो 1 + 0, नेक्स्ट में क्या होगा 2 + 3, क्यों, क्योंकि ये क्या है a 0 1
और ये क्या है B01। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो A00 प्लस B00 कर रहे हैं, और हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे हैं, अगर ये C मैट्रिक्स है तो हम लोग कहाँ, उसके कौन से इंडेक्स पे स्टोर कर रहे हैं, C00 पे, ठीक है। जैसे मान लो कोई C मैट्रिक्स है, यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट कहाँ स्टोर करना है, मान लो तो C01 क्या होगा, 01 इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, A01 प्लस B01, ठीक है। तो अगर हम बात करें Cij क्या होगा, Cij क्या होगा बताओ, AIJ प्लस Bij, है ना, प्लस Bij। तो अब हम लोग, आप लोग लिखो, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू मैट्रिक्स। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, जब आपको मैट्रिक्स का एडिशन करना है दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हैं दो मैट्रिक्स का सम? कोई सुन नहीं रहा लग रहा है। यस सर, कर सकते हैं। करो फिर, अभी करोगे? सर एग्जाम है सी लैब का अभी। कौन सी लैब का? सर सॉरी, उसका CSC लैब का 12 बजे से था। अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग लैब करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पर देखता हूँ। तो ये समेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोनों करके आना आप लोग, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है। हर शर्मा सुन नहीं रहे हो तुम? तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और समेशन दोनों कर लेना, ये नेक्स्ट लैब का प्रोग्राम है, ठीक है। तो अगर मैं नहीं भी दूंगा तो ये आपको करके आना है नेक्स्ट लैब में, रेडी रखना और उसको सबमिट करना है नेक्स्ट में। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग लीव करता हूँ मैं, ओके।